you are ordinary today, but God will have a divine plan for you. How you will be divine or supernatural? Only by the power and the fire of Holy Spirit within you. जीवन को तू यीशु तू मेरे जीवन को तू। God is good. परमेश्वर अच्छा है। Say all the time. God is good. And all the time. God is good. Hallelujah. Hallelujah. You have clapped for me, now clap for Jesus loudly. आपने हमारे लिए तालियां बजाई, प्रभु के लिए तालियां बजाएं। Yes, He deserves the glory. प्रभु महिमा के योग्य है। He deserves the honor. प्रभु ही आदर के योग्य है। Hallelujah. हालेलुया। Today we are going to study from the book of Bible. आज हम बाइबल से एक और अध्ययन को करने वाले हैं। And we are going to understand how God wants to speak to us. और हम इस बात को समझेंगे कि परमेश्वर हमसे किस तरह से बात करता है। Are you ready to listen to the word of क्या आप God? परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार हैं? Are you excited to listen to the word of God? क्या आप प्रोत्साहित हैं खुदा के वचन को सुनने के लिए? Yes. Turn to a neighbor and say, let's get excited to listen to the word of God. अपने पड़ोसी की तरफ पलट करके कहें कि आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उत्सुक हो जाएं। Let's get excited. Yes, with a smile. एक मुस्कुराहट के साथ कहें, आओ हम उत्सुकता से प्रवेश का वचन सुने। Okay, we'll go to the word of God. आइए खुदा के कलाम में जाएंगे। The fire within us, हमारे बीच जो आग है, living a spirit-filled life. जो हम आत्मा से भरा हुआ जीवन को जीते हैं। Yes, today we are going to understand about Holy Spirit. आज हम पवित्र आत्मा के विषय में समझने वाले हैं। We are going to understand more deeply about Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा के विषय में अधिक गहराई से समझने वाले And हैं। what happens when Holy Spirit is within us? और पवित्र आत्मा जब हमारे भीतर रहता है तो क्या होता है? And what does not happen when Holy Spirit is not within us? जब पवित्र आत्मा हमारे भीतर नहीं होती तो क्या नहीं होता है? Do we need Holy Spirit? क्या हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है? Hallelujah. Hallelujah. Yes, we need Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। In the journey of faith. विश्वास की यात्रा में पवित्र आत्मा की जरूरत है। Yes, in the journey of faith we need Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है विश्वास की यात्रा में। Without Holy Spirit it is impossible to win. पवित्र आत्मा के बिना हमें विजय पाना कठिन है। Holy Spirit empowers us. पवित्र आत्मा हमें शक्ति देता है। Jesus himself signified the importance of Holy Spirit. यीशु मसीह ने खुद पवित्र आत्मा के महत्व को बताया। What he said to his disciples. उसने अपने चेलों से क्या कहा? You will receive power when the Holy Spirit will come on you. जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ को पाओगे। See first Act verse 8. प्रेरितों के काम की किताब पहला अध्याय 8वें वचन में It is लिखा on their screen. स्क्रीन पर है, आप देख Just सकते हैं। read it. पढ़िए साथ में। Hallelujah. हालेलुया। You will receive power. तुम सामर्थ को पाओगे। When you will receive power. क्यों हमें सामर्थ प्रभु देना चाहता है? When you will receive this power. कब आप सामर्थ को पाओगे? You will receive the power when you will receive Holy Spirit. जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को पाओगे। Hallelujah. हालेलुया। When the Holy Spirit will come, it will bring power. जब पवित्र आत्मा आएगा सामर्थ को लाएगा। And you will be my witnesses. और तुम मेरे गवाह होंगे। In Jerusalem and in all Judah and Samaria. यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया में गवाह होंगे। And to the end of the earth. पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। Do you know where is the end of the earth? क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का अंतिम हिस्सा कौन सा है? The earth is circular. पृथ्वी गोल है। So where till the last place where we can go, that won't be the end also. जब आप चलते ही रहेंगे, पृथ्वी गोल रहने की वजह से आप चलते ही रहेंगे, पृथ्वी का अंत नहीं होगा। When we will receive Holy Spirit, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, we will receive power. हम सामर्थ को हासिल And we करेंगे will witness the work of God. और हम परमेश्वर के कामों के गवाह होंगे। Hallelujah. हालेलुया। Jesus wants us to understand today. यीशु आज हमें ये समझाना चाहते हैं। The Holy Spirit is not a distant or abstract force. It's not any force. पवित्र आत्मा कोई ताकत नहीं है, सामर्थ नहीं है, But rather than He is the very essence of God's dwelling within us. लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर का एक ऐसी शक्ति है जो हमारे भीतर में रहता है। It ignites our spirits ये हमारी आत्मा को प्रज्वलित करता है with divine passion, और हमारे अंदर में उस चाहत को बढ़ाता है, leading us into truth and empowering us to live out the will of God. हमें सच्चाई में बने रहने और परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक चलने में मदद करता है। Hallelujah. हालेलुया। Holy Spirit helps us to lead a life God willing.
परमेश्वर का आत्मा हमें खुदा की मर्जी के अनुसार जीवन बिताने में मदद करता है। Every time we read the Bible, we understand that we need to fulfill the will of God. हम हमेशा बाइबल को पढ़ते एक बात को समझते हैं कि हमें खुदा की मर्जी को पूरा करना है। Did you ever thought why God always wants us to fulfill Father's will? क्या कभी आपने इस बात पर जोर दिया या समझने की कोशिश करी कि क्यों परमेश्वर हमें पिता की मर्जी को पूरा करने को कहते हैं? As Jesus fulfilled Father's will, जैसे यीशु मसीह ने अपने पिता की मर्जी को पूरा की, He always teaches us to fulfill the will of the Father. वो हमें भी इस बात को हमेशा सिखाते हैं कि हम भी पिता की मर्जी को पूरा करें। When we will fulfill the will of the God, जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे, all the blessings and the covenant that God has kept for us will be received by सारी us. आशीषें और प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है हमें हासिल हो जाएगी। Only by fulfilling the will of Father. केवल परमेश्वर पिता की मर्जी को पूरा करने से। Hallelujah. हालेलुया। Today we will explore that what does it mean हम इस बात को आज समझेंगे कि इसका अर्थ होता क्या है। to have fire within us. हमारे भीतर एक आग होना। Hallelujah. Hallelujah. We need to have a fire of Holy Spirit within us. हमें पवित्र आत्मा की आग हमारे भीतर होनी चाहिए। Holy Spirit guides us. पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करता The है। fire of Holy Spirit is not something to be quenched. पवित्र आत्मा की आग ऐसी चीज है जो कभी बुझती नहीं है। Hallelujah. Hallelujah. But it is the transformative power of God ये परमेश्वर की परिवर्तित कर देने वाली ताकत है that turns ordinary people into supernatural वो people. साधारण लोगों को अलौकिक लोगों में तब्दील करती That है turns ordinary vessel into divine purpose. और वो साधारण से बर्तनों को परमेश्वर के स्वर्गीय अलौकिक इच्छाओं में इस्तेमाल होने में मदद करते हैं। If you are ordinary today, अगर आज आप साधारण व्यक्ति है, but God will have a divine plan for you. परमेश्वर के पास आपके लिए अलौकिक योजना है। How you will be divine or supernatural? कैसे आप अलौकिक और स्वर्गीय हो सकते हैं? Only by the power and the fire of Holy Spirit within you. केवल परमेश्वर की वो सामर्थ और वो आग जो आपके अंदर होती है उससे। The Holy Spirit will turn you into a divine purpose. परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको एक स्वर्गीय योजना में तब्दील करेगा। Hallelujah. हालेलुया। It equips us to overcome sin. हमें पाप के ऊपर गलबा हासिल करने के लिए, विजय हासिल करने के लिए मदद करेगा। It equips us to endure trials हमें परीक्षाओं में स्थिर रहने में मदद करेगा and to share the love of Christ boundlessly. और परमेश्वर का वचन दूसरों के साथ बांटने में मदद करेगा। Boldlessly we can share the love of Christ with others with Holy Spirit. खुदावंद की इस गवाही को हम निर्भयता के साथ में पवित्र आत्मा की मदद से लोगों के साथ बांट सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। We would be ordinary today, हम आज साधारण हो सकते हैं, but my God is not ordinary. लेकिन मेरा परमेश्वर साधारण नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। I expected a great response from you. मुझे लगा आप बहुत तारीफ करेंगे, परमेश्वर साधारण नहीं है कहा गया तो। My God is not ordinary. मेरा परमेश्वर साधारण खुदा नहीं Well, है। let me make it clear. Do we serve the same God? मुझे एक बात को कहने दीजिए, क्या हम और आप दोनों एक ही परमेश्वर की आराधना करते हैं? Because you didn't respond, it came a question that my God is different or your God is क्योंकि different. आप प्रत्युत्तर नहीं दे रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका खुदा और मेरा खुदा अलग तो नहीं। Okay, thank you. So our God is not ordinary God. हमारा परमेश्वर साधारण परमेश्वर नहीं He है। turns ordinary things into divine purpose. वो एक साधारण लोगों को स्वर्गीय उद्देश्य में परिवर्तित करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Today we are all the vessel of God. आज हम सब परमेश्वर के अच्छे उपयोग में आने वाले बर्तन हैं। We are the vessel that God has made with His hands. परमेश्वर के हम वो बर्तन हैं जिसे खुदा ने अपने हाथों से बनाया, In His image and likeness. अपनी समानता और स्वरूप में बनाया, So that He can fulfill His divine purpose with us. ताकि वो अपने स्वर्गीय उद्देश्य को हमारे साथ में पूरा कर सके। Only by receiving the Holy Spirit power it's possible. केवल पवित्र आत्मा की सामर्थ को हासिल करने से ये संभव है। Hallelujah. हालेलुया। To live a Christian life it's difficult, कृष्ण मसीह जीवन जीना कठिन है, but Holy Spirit makes it easy for us. लेकिन पवित्र आत्मा हमारे लिए उसको आसान करती है। Hallelujah. हालेलुया। Today in the message we'll discover how to live a spirit-filled life आज का वचन हमें इस बात को बताएगा कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन कैसे and how बिताएं to embrace the fire of Holy Spirit और within us. पवित्र आत्मा की सामर्थ अपने अंदर में कैसे स्वीकार करें। We will look at the characteristics of Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा के चरित्र के विषय में सीखेंगे। Hallelujah. हालेलुया। As we have already read the key verse today. और आज हमारे पास में एक मुख्य वचन भी है, Let's read it again. इसको फिर से पढ़ेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा, Very good. बहुत अच्छे, We will read it together. Slowly we will learn.
एक साथ शुरू करेंगे, धीरे धीरे हम अच्छा पढ़ सकते हैं। The चलिए, first thing, पहली बात, the fire of the Holy Spirit empowers us for victorious life. पवित्र आत्मा हमें इस बात के लिए समर्थ बनाता है कि हम विजयी जीवन को हासिल करें। Jesus wants to give us victorious life. यीशु चाहते हैं हमें विजयी जीवन दें। Who doesn't want victory in his life? किसे जीवन में विजय नहीं चाहिए है? Wow, you are answering for others also. Very आप nice. दूसरों के लिए भी उत्तर दे रहे, बहुत अच्छी बात। This is good. ये अच्छी बात है। Who wants victorious life? किसे जीवन चाहिए विजयी? मुझे चाहिए। Yes, we all want victorious हम life. सबों को विजयी जीवन चाहिए। We feel हमें लगता है whatever we do, we should succeed. जो कुछ भी हम करते हैं उसमें हमने सफल होना चाहिए। Whatever we take in our hands, responsibility, we do it well. हम जो कुछ भी जिम्मेदारी अपने हाथों में लेते हैं, हम उसको अच्छी तरह से निभाएं। Right? सही है। And I believe in Jesus today. और आज मैं यीशु में विश्वास करता हूँ, And I can say this, many of you are experiencing the victory in their life. और मैं इस बात को कह सकता हूँ कि हम में से बहुतेरे विजय को आज जो है महसूस करते हैं, हासिल करते हैं। Yes or no? Hallelujah. Hallelujah. So clap and say thank you, Lord. ताली बजाकर परमेश्वर को कहे धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, Because He has given us victorious life already. क्योंकि परमेश्वर ने हमें पहले ही विजयी जीवन दिया हुआ है। Now understand more victorious. और अधिक समझें कि विजयी जीवन क्या होता है। When the Holy Spirit fills a believer, जब पवित्र आत्मा एक विश्वासी में आता है, it is not just a spiritual experience, ये केवल एक आत्मिक अनुभव नहीं होता, but a tangible empowerment of victorious living. लेकिन एक विजयी जीवन की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। The fire of the Holy Spirit empowers us to live beyond our natural abilities. पवित्र आत्मा हमें इस बात से सामर्थ्य करता है कि हम अपनी साधारण योग्यताओं से बढ़कर के आए। Whatever natural we cannot do, जो साधारण नैसर्गिक चीजें होती है जो हम नहीं कर सकते हैं, the Holy Spirit helps us to do it. पवित्र आत्मा हमारी उसमें मदद करता है कि हम वो कर सकें। Especially in the moment where we are weak, विशेष करके उन क्षणों में जहां हम कमजोर होते हैं, where we have doubt जहां हमें शक होता है or fear. या भय होता है, The Holy Spirit gives us strength पवित्र आत्मा हमें शक्ति देता है to press forward. कि हम आगे बढ़ें। Hallelujah. हालेलुया। We all need a push. हमें सबको एक धक्के की आगे बढ़ने की जरूरत है। Yes, we all need a push in our life to go forward. हमें आगे बढ़ने के लिए किसी के सहारे की जरूरत है। When your children are small, जब आप बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, your parents push. आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स जो है, माता पिता आपको आगे बढ़ाते हैं। Right? In your school, your teachers push. आपके स्कूलों में आपके शिक्षक गण आपको आगे बढ़ाते हैं। If you have a good office environment, अगर आपके पास में एक अच्छा ऑफिस का वातावरण है, your boss is good, आपका अधिकारी अच्छा है, they will help you to grow. वो आपकी मदद करते हैं कि आप So, बढ़ें। in a human life, they need a push. सो इंसानी जीवन में हमें आगे बढ़ाने की जरूरत होती है। Hallelujah. हालेलुया। Turn to your neighbor and say, Jesus will push us forward. अपने पड़ोसी से पड़ोसी को कहे कि यीशु मसीह हमें आगे बढ़ाएंगे। Yes. Hallelujah. हालेलुया। Did you say with a smile? क्या आपने मुस्कुराते हुए कहा? If you smile, मुस्कुराते हुए कहें, then you will receive it. जब आप इसे हासिल करेंगे। Don't get jealous that your neighbor is going forward. आपके पड़ोसी से आप जलन मत करिएगा कि वो आगे बढ़ रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Just as the fire refines and purifies, Holy Spirit refines our character. पवित्र आत्मा हमारे चरित्र को जो है बहुत अधिक साफ सुथरा करता है। Just like the fire refines. जैसे आग से शुद्धता आती है या आग में सब कुछ शुद्ध हो जाता है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में शुद्धता को लाता है। Burning away distractions. जो हमारे ध्यान को भटकाने वाली चीजें होती हैं उसको वो समाप्त करता है। So we are natural. तो हम स्वाभाविक हैं। Holy Spirit coming in us. पवित्र आत्मा हमारे स्वाभाविक जीवन में आता The है। fire of Holy Spirit refines and purifies us. पवित्र आत्मा की आग हमें शुद्ध करती है और हमें पवित्र करती है। Say the fire of Holy Spirit कहें, पवित्र आत्मा की आग refine and purifies me. हमें पवित्र और शुद्ध करती है। Hallelujah. हालेलुया। Yes, it refines us and purifies. ये हमें शुद्ध करती है, हमें पवित्र करती है। It burns all the distractions where we can get distracted. जो हमें हमारे ध्यान को भटकाने वाले हर एक केंद्र बिंदु होती हैं, So वो we can- उसको समाप्त करती है, So we can live a fullness of God's purpose. ताकि हम परमेश्वर के उद्देश्य के साथ पूरी तरह से जी सकें। Hallelujah. हालेलुया। Romans 8:13. What does it say? रोमियो की किताब का 8 अध्याय उसका
13 वचन क्या For कहता है? if you live according to the flesh, you will die. यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। This is very bad. ये बहुत खराब बात है। We will die हम मरेंगे if you live according to the flesh. अगर हम शरीर के अनुसार दिन को बिताएंगे। What is Bible saying over here? पवित्र शास्त्र क्या कह रहा है? We are all living by flesh. हम सब जो है शरीर के जीवन को जीते हैं। The works of the flesh will make us perish. शरीर के काम हमें नाश करते हैं, But the spirit, लेकिन आत्मा, but if by the spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live. लेकिन अगर हम आत्मा के अनुसार जिएंगे तो आत्मा से देह की क्रियाओं को मारेंगे। Hallelujah. हालेलुया। We can kill the work. हम संसार की देह की क्रियाओं को मारेंगे। Hallelujah. हालेलुया। How we can do that? कैसे हम इसको कर सकते हैं? By empowering the victory over sin. पाप के ऊपर प्रभुता हासिल करने के द्वारा, By the fire of Holy Spirit. पवित्र आत्मा की आग से ये संभव है। Hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit give us strength to resist temptation and walk. पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है कि हम हर प्रकार के प्रलोभन से और हर प्रकार के परीक्षाओं में पड़ने से बचे रहें And walk with righteousness. और धार्मिकता के साथ जीवन को बिताएं। Without the power of Spirit, बिना आत्मा की सामर्थ्य के we cannot overcome sin. हम पाप के ऊपर विजय नहीं हासिल कर But with सकते। His fire we can walk victoriously. लेकिन पवित्र आत्मा की आग से हम पाप के ऊपर प्रभुता हासिल कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। No, your voice is not coming. Don't sleep while I am preaching. जब मैं प्रचार करता हूं तो कृपा करके सोइए नहीं। That's why I say everybody say. सब लोग कहें, इसीलिए कहा जाता And है। I also say turn to your neighbor and say, because if he is or she is sleeping, then he can and she can wake up. मैं इसीलिए कहता हूं आपके पड़ोसी से कहो कि आपके पड़ोसी को आप जगा सकते हैं अगर वो वाकई में सो रहा है। So time to time we are touching the neighbor and telling don't sleep. हम Okay? अपने समय समय पर पड़ोसी को हाथ लगा करके जगाते और कहते हैं सोइए मत। Hallelujah. हालेलुया। Holy Spirit empowers us victory over sin. पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है कि हम पाप के ऊपर में विजय को हासिल The करें। second thing is 2 Corinthians 12:9. दूसरी and बात 10. है दूसरा कुरिन्थियों की किताब 12 अध्याय 9 वचन, Strength in weakness. कमजोरियों में सामर्थ्य। Strength in weakness. Yes. कमजोरियों में सामर्थ्य, My निर्बलताओं में grace सामर्थ्य। is sufficient for you. प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। Say, your grace is sufficient for me. बोलिए, प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। If you are not saying, then the grace of Lord will not be sufficient. अगर आप नहीं कह रहे हैं तो प्रभु का अनुग्रह आपके लिए काफी नहीं होगा। Say, बोलिए, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। Hallelujah. हालेलुया। For my power is made perfect in weakness. क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। The Holy Spirit empowers us in our moment of weakness. पवित्र आत्मा हमारी कमजोरी के क्षणों में हमें सामर्थ्य प्रदान करती है। The more time we are weak, जितने ज्यादा देर हम कमजोर रहेंगे, the more the Holy Spirit will strengthen us. पवित्र आत्मा उतना ही हमें सामर्थ्य देगा। Hallelujah. हालेलुया। You know how a Christian people life should be. क्या आप जानते हैं कि मसीह का जीवन कैसे होना चाहिए? If you are into weakness, अगर आप कमजोरियों में हैं, you should be more happy. आपको ज्यादा खुश होना If you चाहिए। are in trouble, अगर आप कष्ट में हैं, you should pray more to God. आपने ज्यादा प्रार्थना करना चाहिए परमेश्वर If you are से। in sickness, अगर आप बीमारी में हैं, you should be more happy आपने खुश होना चाहिए, because your Lord has overcome everything. क्योंकि आपका परमेश्वर हर चीजों से ऊपर आपको निकालने वाला है। You should have that confidence within yourself. आपके अंदर वो हियाव होना चाहिए अपने भीतर। You should have that kind of faith in your heart उस प्रकार का विश्वास आपके दिल में होना चाहिए that I am weak now. कि मैं कमजोर हूँ अब, Now the power of Holy Spirit will start working in लेकिन me. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य अब मेरे जीवन में काम करना Oh, शुरू I am करेगी। sick now. मैं अभी बीमार हूँ, Now the Holy Spirit will start healing me. पवित्र आत्मा मुझे अब चंगा करना शुरू करेगा। Hallelujah. हालेलुया। The Holy Spirit works accordingly. परमेश्वर का पवित्र आत्मा समय अनुसार काम करता है। You are naturally आप स्वाभाविक हैं, weak. कमजोर हैं। Holy Spirit will make you strong. पवित्र आत्मा आपको शक्तिशाली बनाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Power in weakness. कमजोरियों में सामर्थ्य, Holy Spirit gives us power in weakness. पवित्र आत्मा आपकी निर्बलताओं में आपको शक्ति देता है। Boldness in proclaiming the gospel. परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने में हियाव देता है। Acts 4:31 says. प्रेरितों के काम की किताब का 4 अध्याय 31 वचन में Yes. लिखा है, We'll read in Hindi. Yes. यहाँ हिंदी में पढ़ेंगे। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए
और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। Hallelujah. हालेलुया। Where does this boldness is coming from? ये हियाव कहाँ से आ रहा है? By Holy Spirit. पवित्र आत्मा से आ रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Holy Spirit give us boldness to speak the word of God. पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाने की ताकत देता है। Praise God. प्रेज द लॉर्ड। So when you are receiving Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा को प्राप्त कर रहे हैं, you will go to the end of the world आप पृथ्वी के छोर तक जाएंगे and you will boldlessly speak about the work that Holy Spirit God has done in your life. और पवित्र आत्मा से भरकर उसकी सामर्थ्य से आप हर उन कामों का बखान करेंगे जो पवित्र आत्मा ने आपके जीवन में किया। Hallelujah. हालेलुया। The fire testifies आग जो है गवाही देती है about Jesus यीशु के बारे में, overcoming fear, भय के ऊपर विजय, just as the apostles did after Pentecost. जैसे पेंतिकोस्त के बाद प्रेरितों ने किया। Hallelujah. हालेलुया। They received the fire, Holy Spirit. उन्होंने पवित्र आत्मा की आग को हासिल How किया। many people received? कितने लोगों ने प्राप्त किया? Where they were? कहाँ थे वे? We need to read more of the word of God. हमें पवित्र वचन को और अधिक पढ़ने की They were जरूरत है। 120 people. 120 लोग कहाँ थे? Yes, you need to push your mind a little bit. आपको जो है अपने दिमाग को धक्का लगाना पड़ेगा बीच बीच में, Then only the answers will come correctly. तब जो उत्तर जो है सही आएगा। You all know the answers, आप सब जानते हैं उत्तर को, but you are not getting related it. Okay. लेकिन आप उसके साथ में जुड़ नहीं रहे This हैं। 120 people received the Holy ये Spirit, 120 लोगों ने पवित्र आत्मा को पाया and the fire of the Holy Spirit were within him, और पवित्र आत्मा की आग उनके अंदर थी and they preached the word of God boldlessly. और वो बड़े हियाव से परमेश्वर का वचन सुना रहे थे। What does the Holy Spirit do? पवित्र आत्मा क्या करता The है? fire of the Holy Spirit guide us into truth. पवित्र आत्मा की आग हमें सच्चाई के अंदर मार्गदर्शन करती है। When you have Holy Spirit, जब पवित्र आत्मा है, you can't do the negative work, आप जो है नकारात्मक काम कभी नहीं or करेंगे you can't lie. या आप झूठ नहीं बोलेंगे। What will happen? क्या होगा? The Holy Spirit will start speaking to you. पवित्र आत्मा आपसे बात करना शुरू करेगा। If you lie, अगर आप झूठ बोलते and the हैं, guilt will start coming in your heart, दोष की भावना आपके दिल में आने लगेगी, and then you will regret. तब आप खेद महसूस करोगे। That's why the Christian people have a good heart, इसीलिए मसीह लोगों के पास एक अच्छा दिल होता है and that's why many people take disadvantage of that heart. और उस अच्छे दिल का बहुत सारे लोग बुरा उपयोग भी करते हैं। But don't worry, पर चिंता न करें, people will take disadvantage, लोग जो है उसका गलत फायदा उठाएंगे, but God will always bless you for that also. लेकिन परमेश्वर आपको आपके अच्छे दिल के लिए हमेशा आशीष देगा। Hallelujah. हालेलुया। God will bless you for your good deeds. परमेश्वर आपके अच्छे कामों के लिए आपको आशीषित करेगा, Yes, because you did with good intentions. क्योंकि आप अच्छे स्वभाव से दिल से कर रहे हैं। Praise God. प्रेज द The लॉर्ड। second thing, the fire of Holy Spirit guides us into the truth. दूसरी बात, पवित्र आत्मा आपको सत्य के मार्ग पर मार्गदर्शन करता है, Just as a counselor and a guide. एक अच्छे सलाहकार, एक मार्गदर्शक के रूप में। One of the primary role of Holy Spirit is पवित्र आत्मा का प्राथमिक एक कर्तव्य ऐसे होता है leading us into the truth, कि हमें सच्चाई में मार्गदर्शन करे, revealing God's will, परमेश्वर की इच्छा को हम पर जाहिर करे and teaching us how to live. और हमें सिखाए कि कैसे हम जिए। You know, God always wants to shape us. परमेश्वर हमेशा हमें आकार देना चाहता है। God always wants to shape us, परमेश्वर चाहता है कि हमें आकार दे, because this world makes us crooked. क्योंकि ये संसार हमें दुष्ट बनाती है। This world changes our shape. ये संसार हमारे स्वरूप को बदलता है। The flesh changes our desire. हमारा शरीर हमारी इच्छाओं को बदलता है। And that's why God is always teaching us to come together and to obey the will of God. और इसलिए परमेश्वर हमें एक साथ आने और खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए कहता है। And Holy Spirit guides us, reveal us and tells us the truth. पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करता है, हम पर प्रकट करता है और हमें सच्चाई को बताता है। As we live spirit-filled life, जब हम आत्मा से भरा हुआ जीवन को we जीते, are continuously guided by wisdom and the fire of the Spirit. हम लगातार पवित्र आत्मा की बुद्धिमत्ता के द्वारा से और पवित्र आत्मा की आग के द्वारा से मार्गदर्शित किए जाते हैं। We are sometimes we cannot see from the natural eyes, कई बार हम अपनी स्वाभाविक आंखों से नहीं देख पाते, but the Holy Spirit लेकिन makes it पवित्र clear. आत्मा हमें दिखाता है, Makes it clear. वो हमें स्पष्ट करता है। The Spirit of truth. सच्चाई की आत्मा। See what John is saying over here. यूहन्ना यहाँ पर क्या कह रहा है, देखें।
But when He, the Spirit of truth, comes, पर जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, He will guide you वो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, into all the truth. सब सत्य के मार्ग को बताएगा। Hallelujah. हालेलुया। But when He, the Spirit of truth, comes, लेकिन तब जब वो सत्य का आत्मा आएगा, He will guide you into all the truth. वो हमें हर सत्य के मार्ग को बताएगा। This means there is false and lies all around you. इसका अर्थ है कि आपके आसपास बहुत कुछ झूठी बातें भी हैं, But we need the Spirit of truth. लेकिन हमें सत्य का आत्मा चाहिए, We need Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा चाहिए। Holy Spirit will guide you. पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करेगा, He will guide you into all the truth. वो हर सत्य के बातों को आपको बताएगा। If somebody is coming with a lie to you, अगर कोई किसी झूठी बात के साथ आपके साथ आ रहा है, you cannot see with your natural eye. आप स्वाभाविक आंखों से इसको नहीं देख पाओगे, But the Holy Spirit which is within you, लेकिन पवित्र आत्मा जो आपके भीतर है, He will guide you. वो आपको बताएगा। Oh, this man is saying the false. ये व्यक्ति, ये मनुष्य जो है गलत बोल रहा है, He won't do what he's saying. वो जो बोल रहा है वो खुद करता नहीं है। Did you experience this? क्या आपको ऐसी बातों का अनुभव हुआ? The Spirit which is within you always guides you. आत्मा जो आपके भीतर होता है आपका मार्गदर्शन करता है, But still, because looking to the person, you help him. कि उस व्यक्ति की तरफ देखकर आप फिर भी उसकी मदद ही करते हैं। Right? सही है, The Holy Spirit guides you. पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करता है। That's the divine guidance leads us to the deeper relationship with God. ये अलौकिक मार्गदर्शन जो है हमें परमेश्वर के साथ गहरे संबंधों में ले जाता है। Hallelujah. हालेलुया। Holy Spirit lighten the scripture for us, पवित्र आत्मा हमारे लिए वचन के भेद को प्रकट करता है, making the word of God alive खुदा के वचन को जीवित करता है, and active in our hearts, हमारे हृदयों में उसको जीवित करता है, so that we can obey and follow it clear. यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है तो वो परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। Hallelujah. हालेलुया। Jesus is not taking anything. God is not taking anything for wisdom. यीशु मसीह आपको ज्ञान देने या बुद्धि देने के बदले कुछ लेता नहीं है, He is generously giving it to all वो उदारता से सबको देता है, without finding faults. आपके अंदर गलतियों को नहीं ढूंढता, उलाहना नहीं देता। He is not saying, oh, you are not this, oh, you are not capable, oh, you don't have that. वो आपको नहीं कहता है कि तुम योग्य नहीं हो, तुम ऐसे नहीं हो, खुदा ऐसे नहीं कहता। Without finding faults in your life, God will give you wisdom. आपके जीवन में गलतियों को ढूंढने के बिना ही वो आपको ज्ञान देता है। See the nature of our God. देखिए परमेश्वर का स्वभाव, He covers our wrongdoings. परमेश्वर हमारे हर एक गलतियों पर पर्दा डालते हैं, He covers it. वो उसके ऊपर उसको ढांप देते हैं। He is very, very concerned about it. वो आपके विषय में बहुत बहुत जो है संबंध रखते जानते हैं। He knows if you are doing wrong, वो जानते हैं जब आप गलत करते हैं, but He never publicize it. लेकिन वो उसका प्रचार नहीं करते। He gives you always a chance. He gives us chance to rectify. वो आपको हमेशा अवसर देते हैं कि आप अपनी गलती को सुधार लें। So today when we ask wisdom, जब आज बुद्धि को मांगती है, so God will give us generously. परमेश्वर उदारता से बुद्धि देगा। The fire of Holy Spirit provides us divine wisdom. परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आग हमें स्वर्गीय बुद्धि को देगी। Not just the worldly knowledge. केवल सांसारिक ज्ञान नहीं, The wisdom helps us to navigate life challenges. बुद्धि जो है पवित्र आत्मा जो देती है, जिंदगी के हर एक चुनौतियों में सिर खड़े रहने या आगे निकलने की क्षमता देती है। And that decision will honor God. और वो निर्णय परमेश्वर की तरफ से है। In your life, everything you do should honor God. हर एक चीज जो आप अपने जीवन में करते हैं उसमें परमेश्वर का आदर होना चाहिए। Right? सही है। Whatever you are doing, just think over it. Oh, I am doing this. Will it honor God? जो कुछ भी हम करते हैं हम उसके विषय में सोचे, मैं ये कर रहा हूँ, क्या इससे परमेश्वर को सम्मान मिलेगा? Right? If you're not coming to church, think, I am doing this. Am I honoring God? जब आप कलीसिया में नहीं आते हैं तो आप सोचिए कि मैं कलीसिया में नहीं जा रहा हूँ, क्या इससे परमेश्वर का मान हो रहा है? When you think I am honoring God, then automatically you will find yourself doing that thing. जब आप इस चीज को समझने लगते हैं कि मेरे कुछ कामों से परमेश्वर का मान होता है,
आप वही काम करते हैं जिससे प्रभु का मान हो। Hallelujah. हालेलुया। Because you love God क्योंकि आप परमेश्वर से मोहब्बत करते and हैं God loves you. और परमेश्वर आपसे मोहब्बत करता है। Hallelujah. Hallelujah. The fire of Holy Spirit transforms our heart. This is the last point. पवित्र आत्मा की आग हमारे दिलों को बदलती है, यह आखिरी विषय है। It transforms our heart. हमारे हृदयों को परिवर्तित करती है। Holy Spirit not only empower and guided but also transforms our heart. पवित्र आत्मा साधारण तौर पर हमारा मार्गदर्शन ही नहीं करती, लेकिन हमारे हृदयों को भी बदलती है। Hallelujah. हालेलुया। Say, Holy Spirit transforms my heart. कहें, पवित्र आत्मा मेरे दिलों को बदल देता है। Great. Hallelujah. हालेलुया। When we live a spirit-filled life, जब हम आत्मिक जीवन को जीते हैं, our desire, thoughts and actions are aligned with God. हमारी इच्छाएं, हमारी क्रिया परमेश्वर के समरूपता में होती है। The fire within us changes us from inside out. परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आग हमारे भीतर से हमको बदलती है, Changing inside out. हमें भीतर से बाहर के लिए बदलती है। When you are changed from the inside, जब आप अंदर से बदल जाएंगे, everything will from the outside will change. आपके लिए सब कुछ बाहर का जो है वो भी बदल जाएगा। But if the outside is changing and inside is nothing, लेकिन बाहर का सब कुछ तब्दील हो रहा है और भीतर कुछ बदला नहीं है, if the inside is the same अगर अंदर का वैसे ही है and outside you are doing many good changes, और बाहर आप बहुत कुछ अच्छे बदलाव कर रहे हैं, what will happen? क्या होगा? It won't be for a long time. ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। How many days I don't know, but short time. कितने दिन मैं नहीं जानता, लेकिन थोड़े दिन चलेगा। But when the change is coming from the inside, लेकिन जब भीतर से बदलाव आता है, your heart is changing, आपका दिल बदलता है, your thoughts are changing, आपका विचार बदलते हैं, then your words are changing, तब आपके शब्द बदलते your हैं, actions are changing, आपकी क्रिया बदलने लगती your है, habits are changing. आपके आदतें बदलती है। All how it's possible? और ये कैसे संभव है? Because the Holy Spirit is changing you from the inside. क्योंकि पवित्र आत्मा आपको भीतर से बदलता है। Once I start changing inside, जब मैं एक बार अंदर से बदलना शुरू होता हूँ, God will change you completely from the outside. परमेश्वर पूरी तरह से बाहर से भी हमको बदल देगा। Hallelujah. हालेलुया। The inside outward change. भीतर से बाहर की दुनिया का बदलाव, Say inside outward change. भीतर में बाहर का बदलाव। You have to say together. आपको एक साथ बोलना है, भीतर में बाहर का बदलाव। Very good. Clap for yourself. तालियां बजाएं अपने लिए। Transformation of desires. इच्छाओं का परिवर्तित होना। What is written over here? क्या लिखा है पवित्र शास्त्र में? 16-17. गलतियों 16-17. गलतियों की किताब। So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. 5 अध्याय 16-17 वचन यहाँ पर लिखा हुआ है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा को किसी रीति से पूरा ना करोगे। Hallelujah. हालेलुया। How is it possible? कैसे ये संभव है? By walking in the Spirit. आत्मा के अनुसार चलने से। Only by walking by the Spirit, केवल आत्मा के अनुसार चलने से you will overcome the desires of the flesh. आप शरीर की इच्छाओं को पूरा नहीं करोगे, ऊपर विजय पाओगे। Hallelujah. You will Hallelujah. overcome. आप उसके ऊपर आ जाओगे। This is the transformation of desires. ये इच्छाओं का परिवर्तन है। When the Holy Spirit is filled us, जब पवित्र आत्मा से आप भर जाते हैं, it transforms our desire ये आपकी इच्छाओं को बदल देता है, from fleshy to the longing of the holiness and obedience. शारीरिक इच्छाओं से आपको पवित्रता से रहने और पवित्रता की इच्छा करने में परिवर्तित करता Our है। heart become aligned with the things of God. हमारा हृदय परमेश्वर की वस्तुओं के साथ सीधा करता है। A transformation of desires. इच्छाओं का परिवर्तन। The fruits of the Spirit. आत्मा के फल। What are the fruits of the Spirit? पवित्र आत्मा के क्या फल होते हैं? But the fruit of the Spirit is joy, love, joy, peace. प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता और संयम। This evidence of Spirit-filled life is seen in the transformation of a character. पवित्र आत्मा का ये चिन्ह है जो हमारे चरित्र का परिवर्तन करते हैं। If you see and study one fruit, अगर आप एक इन आत्माओं के फलों को देखकर अध्ययन करते हैं, so when you have Holy Spirit, जब पवित्र आत्मा होगा, you will have love. आपके पास प्रेम होगा। When you have Holy Spirit, जब पवित्र आत्मा होगा, what you will have? आनंद होगा, Joy. जॉय। Okay. When you have Holy Spirit, जब पवित्र आत्मा होगा, what you will have? क्या होगा आपके पास? Peace. Okay. Male, When you peace. have Holy Spirit, जब पवित्र आत्मा होगा, what you will have? क्या होगा? Dheeraj. And when you have Holy Spirit, जब आपके पास पवित्र आत्मा होगा, you will have
युग आप क्या होगा? Krupa. कृपा होगी। Your heart will be kind. आपका दिल कृपा से भरा हुआ होगा। When people will come with aggression, जब लोग आपके पास आक्रामक रूप में आएंगे, you have peace. आप शांति से भरे You रहेंगे। will listen and you calmly will handle it. आप शांति से सुनकर उस पर काम करोगे। Hallelujah. हालेलुया। You should have good peace, patience in your life. धीरज जो है हमारे जीवन में होना चाहिए। Without patience, बिना धीरज के you will take wrong decisions. आप गलत निर्णय लोगे। If you have patience, अगर आपके पास धीरज है, you can take correct decisions. आप सही निर्णय लोगे। With joy, आनंद से you will talk to people who are in sadness or depression. आप उन लोगों से जो बहुत ज्यादा अवसाद में हैं या उदासी के माहौल में, आप उनसे बात करोगे। Because you have Holy Spirit, क्योंकि पवित्र आत्मा आप में है, you will have the fruit of the Holy Spirit. आपके अंदर में आत्मा के फल भी होंगे। So when you will share your words and you share the Bible verses with that person, अब जब अपनी बातों को या पवित्र शास्त्र की बातों को उस व्यक्ति के साथ आप बात करोगे, then you will share the joy of God. तब आप परमेश्वर के आनंद को उनसे बांटोगे। Hallelujah. हालेलुया। So they also will be joy, filled with joy. और वो भी जो है आनंद से भर जाएंगे। When you have Holy Spirit, जब पवित्र आत्मा होगा, you will have faithfulness. आपके पास में विश्वास होगा। That's the fruit. वो फल है, Because you have Holy Spirit, you have faithfulness. क्योंकि आपके पास पवित्र आत्मा है, आपके पास में विश्वास योग्यता भी है। Hallelujah. हालेलुया। Holy Spirit will bring gentleness पवित्र आत्मा आपके पास में भलाई के कामों को लेकर के आएगा and self-control. और संयम को लेकर के आएगा। Hallelujah. हालेलुया। Say, Lord, I need the fruit of the Spirit today. प्रभु से कहें, खुदा मुझे पवित्र आत्मा के फलों की जरूरत है। Hallelujah. हालेलुया। God will give you all the gifts. परमेश्वर आपको हर फल देगा, हर वरदान Hallelujah. देगा। हालेलुया। Ezekiel 36:26-27 says, यह खेल की किताब का 36 अध्याय 26 और 27 वचन कहता है, the Spirit is renewing our heart. तुम्हारे भीतर नई आत्मा को दूंगा। Hallelujah. हालेलुया। I will give you a new heart and put a new spirit in you. प्रभु का वचन कहता है, मैं तुमको एक नया हृदय दूंगा और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा को उत्पन्न करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Do you want a new spirit and a new heart today? क्या आपको एक नई आत्मा और एक नया दिल चाहिए आज? The heart which is filled with the fruit of Holy Spirit. एक दिल जो पवित्र आत्मा के दान से भरा हुआ हो। The spirit filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भरा हुआ। The spirit filled with the fire of Holy Spirit. ऐसी आत्मा जो आग से भरी हुई है। I will remove from you your heart of stone प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हारे भीतर से पत्थर का हृदय निकाल दूंगा and give you a heart of flesh. और तुम्हें एक मांस का हृदय दूंगा। What is this heart of stone? ये पत्थर का दिल क्या है? The heart of stone is the heart when people are not opening their self to God. ये पत्थर का हृदय वो है जब लोग अपने दिल को परमेश्वर के लिए खोलते नहीं हैं। The heart stone has nothing. कठोर हृदय क्या है? उसमें कुछ नहीं होता। Nothing. It doesn't live. उसके अंदर कुछ नहीं होता, उसमें जीवन नहीं है। But a heart of flesh. लेकिन मांस का हृदय, It has kindness. उसमें दया है, It has purity. उसमें शुद्धता है, It has holiness. उसमें पवित्रता है, It has power of repentance. उसमें पश्चाताप की सामर्थ है, It has power of confession. उसमें स्वीकार करने की ताकत है। That's the heart of flesh. वो मांस का हृदय है। But the other hand, the heart of stone. लेकिन दूसरे सिरे पर पत्थर का हृदय, It doesn't matter whatever you do. वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप कुछ भी करें। If he is sinning, he will sin. अगर वो पाप कर रहा है तो पाप करता He रहेगा। doesn't have fear of God. उसको परमेश्वर का भय नहीं होता। It doesn't obey the commandments of God. वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता। The heart of stone is not aligned by the will of Father. पत्थर का हृदय परमेश्वर की इच्छा के समान हो नहीं सकता, Because क्योंकि it doesn't live. वो जीवित नहीं है, It's not bothered or concerned. उसमें जीवन नहीं है, उसको कोई संबंध नहीं है। But God wants to give us a heart of flesh today. लेकिन परमेश्वर चाहता है आज कि हम एक मांस का हृदय दें। God wants to give you a new heart. परमेश्वर एक नया दिल देना चाहता God है। wants to give a new spirit, परमेश्वर एक नई आत्मा देना चाहते हैं। not the old heart, पुराना दिल नहीं, not the old injuries, पुराने घाव नहीं, but a new heart. लेकिन एक नया दिल। Hallelujah. हालेलुया। A spirit filled with the fire of Holy Spirit. एक ऐसी आत्मा जो पवित्र आत्मा की आग से भरी हुई है। How is it possible to receive it? कैसे ये संभव है प्राप्त करना? The Holy Spirit transforms the hardened heart.
परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे कठोर हृदय को बदल देता है, replacing with the heart that are sensitive to God's voice and responsive to His leading. कठोर हृदय को निकालकर एक ऐसे हृदय को देता है जो परमेश्वर की आवाज की प्रत्युत्तर देता है, उसकी मर्जी पर चलता है। Just like Samuel was there, जैसे शमूएल था, he heard a voice. वो परमेश्वर की आवाज उसने सुनी, Every time he heard a voice, जब भी उसने आवाज को सुना he responded. वो उसने प्रत्युत्तर दिया। But what is happening in the life of Christians today? लेकिन मसीहियों के जीवन में आज क्या हो रहा है? The power of word is already there, परमेश्वर के वचन की ताकत पहले ही है, but we are not listening. We are not having a heart of listening. लेकिन हम सुनते नहीं हैं, हमारे पास में सुनने का दिल नहीं। Or we might be listening, but we are not obeying. लेकिन हो सकता है कि हम सुन भी रहे हैं, लेकिन हम उसको पालन नहीं कर रहे हैं। Ultimately, we are not following the will of God. अंत में हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। So the fire of Holy Spirit is not working fully within us. तो पवित्र आत्मा की आग पूरी तरह से हम में काम नहीं कर रहा It है, is working partially. ये थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है। Sometimes we are kind, sometimes we are not kind. कई बार हम दयालु होते हैं, कई बार हम दयालु नहीं होते हैं। Sometimes we are in faith, sometimes we are in doubt. कई बार हम विश्वास में होते हैं और कई मर्तबा हम शक में होते हैं। Sometimes we are following the word, sometimes we are following the world. कई बार हम वचन का पालन करते हैं, कई बार हम संसार का पालन करते But the हैं। Lord is speaking to us today. लेकिन प्रभु का वचन आज हमसे बात He करता wants है, to change our वो heart. हमें हृदय को बदलना चाहता He है। wants to change the spirit we are carrying. हमें उस आत्मा को जो हम लेकर के चल रहे हैं बदलना A चाहता है। new heart. एक नया दिल, Put a new spirit in you. एक नई आत्मा अंदर The देना चाहता spirit of truth है। सच्चाई की आत्मा will bring boldness in you. जो हियाव लेकर के आएगी When हमें। you will be bold, जब आप हियाव से भर जाएंगे, you can stand boldly and preach the word of God. आप हियाव से खड़े रहकर परमेश्वर का वचन सुनाओगे। You can testify the word of Jesus He has done in your life. आप परमेश्वर के उन कामों का वर्णन करोगे जो प्रभु ने आपके अंदर में किया है। Hallelujah. हालेलुया। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, the word says when you receive the power of the Holy Spirit, वचन कहता है जब तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ पाओगे, Holy Spirit will come on you पवित्र आत्मा तुम पर आएगा and you will witness. और आप गवाह होंगे, You will witness the work of God. परमेश्वर के कामों का गवाह होंगे। Are we really witnessing the word of God in कैसे our आप life? सचमुच में संसार में खुदा के गवाह हो सकती हैं? This is a question for us to ये obey, प्रश्न है हमारे लिए आज, to think. सोचने के लिए। The fire of the Holy Spirit empowers us. पवित्र आत्मा की आग हमें योग्य बनाती The है। fire of the Holy Spirit guides us. परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आग हमारा मार्गदर्शन करती The है। fire of the Holy Spirit transforms our heart. परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आग हमारे हृदयों को बदलती है, परिवर्तित करती है। Hallelujah. हालेलुया। So this is the word of the fire of the Holy Spirit. ये परमेश्वर का वचन है पवित्र आत्मा की आग के विषय में। And the fire of the Holy Spirit living a spirit-filled life. और पवित्र आत्मा की आग जो हम में रहती है, हमें आत्मा से भरा हुआ जीवन जीने को We बताती all है। need Holy Spirit. हमें सबको परमेश्वर पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। With the presence of the Holy Spirit, आत्मा की उपस्थिति में many things happen. बहुत चीजें होती हैं। Hallelujah. हालेलुया। In the storm, the disciples were afraid. यीशु मसीह के मौजूदगी में चेले नाव में तूफान में घिर गए, वो डर रहे थे। What happened after that? क्या हुआ उसके बाद? They were looking for options. वो चुनाव के लिए देख रहे थे, क्या उपाय है देख They रहे थे। started looking options. वो देखने लगे और क्या उपाय हो सकता है। Suppose you are one of the disciple in that लेकिन boat. हो सकता है कि आप उस समय नाव में एक चेले के रूप में होते, What you would do? तो आप क्या किए होते? You would also do the same thing what they have done. आप जो चेले कर रहे हैं वही आप भी किए होते। But then Jesus, they woke up Jesus. लेकिन उन्होंने जब जा करके यीशु को उठाया, What Jesus said? यीशु ने क्या कहा? Jesus wanted the disciples to know His presence, acknowledge His presence, and have प्रभु चाहते थे कि चेले उसकी उपस्थिति को जाने और विश्वास रखें। in your life when Jesus is there. आपके जीवन में यीशु मसीह जब है, Are you still going to Jesus आप फिर भी क्या यीशु के पास जा रहे हैं and try telling Him, और उनको बता रहे हैं where is our faith? हमारा विश्वास कहाँ है? Holy Spirit will help us to do this. पवित्र आत्मा मदद करेगा ये करने के लिए। Let's stand in the presence of the Lord आइए खुदा की उपस्थिति में अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं and say, Lord, I need that spirit. और प्रभु से कहेंगे, प्रभु मुझे उस आत्मा की The जरूरत है। spirit of truth I need. सच्चाई की आत्मा मुझे चाहिए। Lord, I need the spirit. प्रभु मुझे वो आत्मा I चाहिए, need the fire of Holy Spirit. मुझे पवित्र आत्मा की आग चाहिए। So all the impurities which is within me can be burned. तो मेरे भीतर की हर प्रकार की अशुद्धता जल जाएगी।
all I will be purified. मैं पूरी तरह से पवित्र हो जाऊंगा। I need the fire of Holy Spirit to empower us. मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए कि मुझे वो बल प्रदान करे। I need the empowerment of victory over sin. मुझे पाप के ऊपर प्रभुता करने वाली आत्मा चाहिए। Yes, I need the spirit of strength. मुझे आत्मा की सामर्थ चाहिए। Come on, let's pray together. आइए एक साथ प्रार्थना करेंगे। If your heart is saying that you need this spirit, अगर आपका हृदय आपसे कहता, आपका दिल आपसे कहता है कि आपको इस आत्मा की जरूरत है, then Jesus will give you the spirit. तब यीशु आपको आत्मा देगा। But if your heart is not saying anything, अगर जब आपका दिल कुछ नहीं कह रहा है, then understand you have a heart of stone. तब समझें कि आपका दिल कठोर है। Jesus also wants to change the heart of stone. यीशु फिर भी चाहते हैं कि आपके पत्थर के हृदय को बदल दें। What is Jesus wants to give this powerful spirit? प्रभु Holy आपको Spirit. ये सामर्थ्य आत्मा देना चाहता है, Holy Spirit, पवित्र आत्मा, that you can boldly proclaim the word of gospel. ताकि हियाव से खुदा का सुसमाचार सुना सकें। Holy Spirit will guide you. पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करेगा। He will guide you to the truth. वो आपको सत्य की जानकारी देगा। He will give you wisdom. वो आपको की बुद्धि देगा। You will understand the people who are talking to, are they truly speaking? आप समझ सकोगे कि लोग जो है सच्चाई की बात कर रहे हैं या नहीं। Holy Spirit will give you divine wisdom. पवित्र आत्मा आपको अलौकिक ज्ञान देगा। Come on, let's worship Jesus. आइए प्रभु की आराधना करें। You should pray for yourself. आप अपने आप के लिए प्रार्थना करें। Your own prayer. आपकी खुद की प्रार्थना अपने लिए। Say, Lord Jesus, प्रभु से कहें, प्रभु यीशु, change my heart. मेरे हृदय को बदल, Change my spirit. मेरी आत्मा को बदल। Today I need the powerful Holy Spirit. मुझे आज सामर्थ्य पवित्र आत्मा की जरूरत Today I है। need the fire of Holy Spirit. मुझे आज पवित्र आत्मा की आग की जरूरत Come है। on, say loudly. बोले, जोर से बोले। Come on. Open your heart, open your mouth. थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर I एक need you, Jesus. प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। I need you, Father. प्रभु पिता मुझे तेरी जरूरत है। Please, Lord. प्रभु मुझ पर दया कर। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। तेरे बच्चों की दुआओं को सुन प्रभु, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। Give me wisdom to take the right decisions in my life. प्रभु मेरे जीवन में सही निर्णय लेने के लिए मुझे बुद्धि दे। Show me the right way. मुझे सही मार्ग दिखा, Guide me. मुझे मार्गदर्शन कर। Light my path, Holy Spirit. पवित्र आत्मा मेरे मार्ग में उजाला कर। We need you, Jesus. प्रभु हमें तेरी जरूरत है। We need you, Father. पिता हमें तेरी जरूरत है। Hallelujah. Hallelujah. Come on, come on. हालेलुया, हालेलुया। अपने लिए प्रार्थना करें। The power of Lord is here. परमेश्वर की सामर्थ्य यहाँ पर है। When Jesus is in your boat, जब यीशु आपकी नाव में है, why are you worried? आप क्यों चिंतित हैं? When the Holy Spirit is with you, जब पवित्र आत्मा आपके साथ है, use it. उसका इस्तेमाल करें। When Jesus is walking with you, जब यीशु आपके साथ चल रहा है, why are you looking here and there? आप यहाँ वहाँ क्यों देखते हैं? Where is your faith? आपका विश्वास कहाँ है? Where is your faith? आपका विश्वास कहाँ है? When Jesus is with you on the boat, जब यीशु नाव में आपके साथ है, the storm cannot drown you down. तूफान आपको डुबा नहीं सकता। When Jesus is on your boat, जब यीशु आपकी नाव में सवार है, you should not worry. आपको चिंता नहीं करनी है। He is the changing situation. वो परिस्थितियों को बदलने वाला प्रभु है। Jesus will change your situations today. यीशु आज आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। Jesus will change your situations today. आज प्रभु आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। Jesus will change your health, sickness problems today. आज यीशु मसीह आपके स्वास्थ्य समस्याओं को बदल देगा। Come on, worship. हालेलुया, Worship. आराधना करें, प्रार्थना करें प्रभु से। Ask from Jesus. खुदा से मांगे, Ask the fire of Holy Spirit. पवित्र आत्मा की आग को मांगे। Say, Lord, you are sufficient for me. प्रभु से कहे, तू मेरे लिए काफी है। In my weakness, मेरी कमजोरियों में Jesus is sufficient. यीशु पर्याप्त है। We are naturally weak, हम स्वभाव से कमजोर हैं, but the Holy Spirit divine power will make us strong enough to face the challenges, लेकिन पवित्र आत्मा की स्वर्गीय ताकत हमें चुनौतियों का सामना करने की to योग्यता face देगी। all the challenges of your life. अपने जीवन की हर चुनौतियों को स्वीकार करने की। Holy Spirit is sufficient. पवित्र आत्मा काफी है। Only fire of Holy Spirit is sufficient. पवित्र आत्मा की आग काफी है। Come on, pray. आइए प्रार्थना करें। More प्रार्थना power. करें। अधिक सामर्थ्य के लिए प्रार्थना Yes, करें। open your mouth and pray. अपने मुखों को खोलकर प्रार्थना करें।
हालेलुया। What is the purpose of your life? आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? What Thank is the divine purpose? आपके जीवन का स्वर्गीय उद्देश्य क्या है? Are you walking to the purpose? क्या आप उद्देश्य में चल रहे हैं? Are you walking towards the aim that Jesus has created you for? क्या परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जो आपके लिए जिस निशाने को बना करके रखा उस निशाने की तरफ चल If you रहे are unable to do it, हैं? अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, my brother and my sister, मेरे भाई और मेरी बहनों, whoever is listening to my voice today, जो कोई भी मेरी आवाज को आज सुन रहे if हैं, you are unable to fulfill your purpose, अगर आप अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, there is something wrong in you. कुछ आपके भीतर गलत है, You try so hard. आप बहुत परिश्रम करते हैं, You are trying so hard. आप बहुत कठिन परिश्रम कर You रहे are हैं, pushing yourself, आप अपने आप को ढकेल रहे but हैं, still the purpose is not fulfilled. लेकिन फिर भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है। But God is looking to your बट heart परमेश्वर today. आपके दिल को देख रहा है, God is looking to your efforts today. परमेश्वर आपके प्रयासों को देख रहा है, And He says today, और वो आज कहते हैं, I will give you a new spirit. मैं तुझे एक नई आत्मा दूंगा, I will give you new power. मैं नई ताकत दूंगा, I will give you a new heart. मैं हृदय नया दूंगा, I will change the situation. मैं परिस्थितियों को बदल In दूंगा, Jesus' name it is यीशु के possible. नाम में। हालेलुया। Come on, say, I receive it, Jesus. प्रभु से कहे, मैं इसको हासिल करता हूँ। Jesus, change my situations. प्रभु मेरी परिस्थितियों को बदल, Jesus, change my faith. प्रभु मेरे विश्वास को बदल, Jesus, change my walk of faith. मेरे विश्वास की चाल को बदल, Jesus, change my habit. मेरी आदतों को बदल। Come on, say, बोलते say. चलिए, बोलते चलिए। Yes, in जो the भी name बोल- of Jesus it's possible. यीशु के नाम में सब संभव है। जो बोला जा रहा है बोलते चलिए, बोलते चलिए। Thank you, Jesus. हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Jesus. हालेलुया। यीशु बदल दे पूरी। Oh, I see the storms going down in the name of Jesus. मैं देख रहा हूँ तूफान शांत हो रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया। Thank Take a you. decision in your life today. आज निर्णय ले अपने जीवन का। I will walk by the Spirit of God. आज निर्णय ले कि मैं परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलूंगा। Whatever the Holy Spirit will guide me, I will listen to it. पवित्र आत्मा जो कुछ भी मुझसे मेरा मार्गदर्शन करेगा मैं उसको सुनूंगा। I will not walk by flesh. मैं शरीर के अनुसार नहीं चलूंगा। I will not walk by the pattern and confirm the pattern of the world. मैं संसारिकता और संसार की सदस्यता में नहीं चलूंगा। I will walk by the Spirit of मैं God. यीशु की आत्मा के अनुसार चलूंगा। I will walk in the fire of God. मैं आत्मा की आग में, परमेश्वर की आग में चलूंगा। Come on, I want to pray for you all today. आइए मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करना If you चाहता want हूं। to be receiving this prayer, अगर आपको इस प्रार्थना को हासिल करना है, just raise your hand अपने हाथों को उठाएं and put a hand over your heart और अपने एक हाथ को उठाकर अपने दिल पर रखें and pray with me. और मेरे साथ प्रार्थना करें। Pray with me, church. मेरे साथ कलीसिया प्रार्थना करें, In one accord, एक साथ होकर के। when we pray together, जब हम प्रार्थना करते हैं, when we pray together, जब हम एक साथ प्रार्थना करते there are हैं, mighty things which is happening. बड़ी सामर्थ्य चीजें जो घटती हैं। In the spiritual realm, the things are shaking and changing. आत्मिक क्षेत्र में आपकी चीजें बदल रही है, आकार ले रही है। Come on, pray with me, my church. मेरे साथ मेरी कलीसिया दुआ करे। Say hallelujah in the name of Hallelujah, Jesus. यीशु के Hallelujah. नाम में। Rabba Hallelujah, यीशु के नाम में। Ribo sikhantara Jesus, baba. hallelujah. Riba sakhantoro bo Oh, ribe Tabata sikhantara Shabbat. baba. Hallelujah. Rakhondere be ribe sikhantara baba. Open your mouth. Open your अपने mouth. मुखों Pray, को खोले, pray. प्रार्थना करें। Say मुख को खोले। hallelujah. Say Hallelujah, Jesus. hallelujah। Change, Lord Jesus. Hallelujah। I want to receive the fire of मैं आज Jesus. को हासिल करना चाहता हूँ। Open your mouth. Open अपने your मुख को mouth. खोले, अपने मुख को You have to खोले। open your mouth right now. आप इसी वक्त आपको मुख को खोलना है। All the closed mouth be open in the name of हर एक Jesus. बंद मुंह यीशु के नाम से खुल जाए, Loudly. जोर से। The power of Jesus is coming to you. यीशु की ताकत आपको पास आ रही है। Yes, open your mouth. अपने मुखों को खोलें। Yes, yes, yes. थैंक यू जीसस। The Jesus is entering your hearts, यीशु आपके हृदय में आ रहा है, changing your वो heart, आपके दिल को बदल रहा changing है, your spirit, आपकी आत्मा को बदल रहा changing है, your thoughts, आपके विचारों को बदल or रहा है। removing all the negativity from your mind. हर एक दिमाग से आपकी नकारात्मकता को Power निकाल of रहा God is here. है। यीशु की सामर्थ्य यहाँ है। Very powerfully, Jesus is touching some people. यीशु बहुत सामर्थ्य के साथ कुछ लोगों से Yes. डील कर रहे हैं। Jesus is filling your mouth with fire. यीशु आपके मुख को आग से भर रहे हैं। Rabba sakhantoro bo Hallelujah, ribe Jesus. sikhenterebe. Oh, Yeshu Riba नाम का sakhantara baba Hallelujah. ribo sikhenterebe. Hallelujah, Jesus. Yes, Thank you, Jesus. your Thank body you. is weak, but Jesus will make it strong. Lord, I pray in the name of Jesus. प्रभु मैं यीशु के नाम में प्रार्थना For करता all हूँ। the people who have put their hand on their heart, हर एक उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना
हाथ अपने हृदय पर रखा। Lord, in the name of Jesus, यीशु के नाम में we प्रभु, are your children, हम आपके Master. बेटे बेटियां We हैं। are the creation of your hands. आपके हाथ की रचना है प्रभु। Lord, you have not forbidden nor forsaken us. खुदावन तू हमें भूल नहीं किया, ना हमें त्याग भी नहीं दिया। Lord, you have sent the Holy Spirit as a guide to us. तूने पवित्र आत्मा को भेजा हमारे मार्गदर्शन के रूप में। Lord, I pray in the name of प्रभु मैं Jesus. यीशु के नाम में दुआ करता Lord, हूँ। I pray in the name of प्रभु Jesus. मैं यीशु के नाम में दुआ The करता हूँ। fire of Holy Spirit, पवित्र आत्मा की आग, the power of Holy Spirit, पवित्र आत्मा की सामर्थ, the transformative power of Holy Spirit. बदल देने वाली पवित्र आत्मा की Oh, सामर्थ, the divine wisdom of Holy Spirit. अलौकिक ज्ञान पवित्र आत्मा का, I pray in the name of मैं यीशु Jesus. के नाम में दुआ करता हूँ। Lord, we want to receive the प्रभु fire of हम Holy उसको Spirit. हासिल करना चाहते हैं। Lord, we आपको want to receive the fire of Holy Spirit. प्रभु हम पवित्र आत्मा की आग को हासिल Lord, करना fill चाहते हैं। each and everyone who are here in the name of प्रभु Jesus. यीशु मसीह के नाम से एक एक को जो यहाँ है भर दीजिए Fill प्रभु। with the fire of Holy Spirit. आग Lord. से भर दीजिए पवित्र आत्मा की आग, Fill with the fire of Holy Spirit. पवित्र Master. आत्मा की आग से भर दीजिए। Oh Lord, give them the divine wisdom, Lord. खुदावंद उन्हें अलौकिक ज्ञान थे, Give them the boldness, Lord. हियाव दे। Lord, I pray, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ change our hearts. हमारे हृदय को बदल दे, Give a new heart. एक नया दिल दे, Give a new spirit. एक नई आत्मा दे, Give the spirit of truth. सच्चाई की आत्मा दे, Give the spirit of boldness. हियाव की आत्मा दे, Give us the fruit of Holy Spirit, पवित्र Lord. आत्मा के दान दे खुदा। There is power in the name of यीशु Jesus. के नाम में When सामर्थ we है। have the Holy Spirit, जब हमारे Lord, पास पवित्र आत्मा होगा प्रभु, let our actions speak about it. हमारे कार्यों से वो दिखने देना प्रभु। Whatever we take in our hands, जो कुछ भी हम अपने हाथों में ले, let us be victorious in the वो name of विजयी होने दे Jesus. खुदावंद यीशु के नाम। In every war we be victorious in the name of Jesus. हर एक युद्ध यीशु के नाम में हम विजय हों। In every prayer we be victorious in the हर name एक of प्रार्थनाओं Jesus. में हम विजयी हो। In every decisions of the business we be victorious. हर एक निर्णय हमारे जीवन के हम उसमें विजयी हो। All the questions of the life be solved in the name of जीवन के Jesus. हर प्रश्नों का उत्तर अच्छा यीशु के नाम से। Lord, I pray in the name of यीशु Jesus. के नाम में मैं The प्रभु powerful name of यीशु Jesus. का सामर्थी नाम में Lord, प्रार्थना। I pray for the powers of darkness. मैं अंधकार की उन शक्तियों के लिए दुआ करता हूँ पिता। I break the powers of darkness with the fire of Holy Spirit. हर एक अंधकार की ताकतें पवित्र आत्मा की आग से मैं ब्रेक करता हूँ। Riba sakhante rebe. यीशु Lord, नाम- in the name of Jesus, प्रभु यीशु के नाम में I cover my people under your blood. मैं तेरे अपने अपने लोगों को आपके लहू के अंदर में कवर I करता cover हूँ। them under your blood. मैं आपके लहू में ढापता हूँ। All the false plans of devil, शैतान की हर एक झूठी योजनाएं, all the plans of devil, शैतान की हर एक योजनाएं, all the distraction plans of devil. हर एक भटकाने वाली शैतान की Right योजनाएं, now, in the name of Jesus, I Jesus. rebuke and remove. यीशु के नाम में इसी समय मैं डांटता हूँ, निकालता हूँ। You don't have place here. तुम्हें यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। Only the fire of Holy Spirit is allowed here. पवित्र आत्मा की आग की यहाँ पर इजाजत है, अनुमति है। All the darkness, the powers of darkness working against these people. जो भी अंधकार की शक्तियां इन लोगों के खिलाफ काम करती है, You don't have authority. तुम्हें अधिकार नहीं। These are the chosen vessels of God. ये खुदा के चुने हुए पात्र हैं And this has a divine purpose to do in their life. और इनके जीवन में एक अलौकिक उद्देश्य पूरा करना। And from now onwards, they will walk towards that और purpose. आज के बाद ये परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार चलेंगे And Holy Spirit will give them strength, और Lord. पवित्र आत्मा इन्हें शक्ति प्रदान I करेगी। pray in the name of मैं Jesus. यीशु के नाम में दुआ करता हूँ। Whatever situations which is bad in anybody's life, Lord, I see. जो भी जीवन में किसी के भी जीवन में बुरी परिस्थितियां हैं, प्रभु मैं देखता हूँ। I see a mountain. मैं एक पर्वत को देखता हूँ, I see a mountain. एक पर्वत को देखता हूँ, And I see a mountain of difficulties in your life. कठिनाइयों के एक पहाड़ को आपके जीवन में देख रहा हूँ। But still you are in rejoicing in God. लेकिन फिर भी आप प्रभु में आनंद को करते हैं, Still you are rejoicing in God. फिर भी आप प्रभु में आनंदित हैं। You are climbing that mountain step by step. आप उस पर्वत पर कदम ब कदम चढ़ रहे हैं And you are standing in top of the mountain and saying, Lord, whatever is happening for good. और आप पर्वत के शिखर पर चढ़ करके कहते हैं, प्रभु जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। If you are here right now, अगर आप यहाँ पर हैं, Jesus is touching you. यीशु आपको छू रहे हैं। Yes, you are here. आप यहाँ पर हैं। Jesus is हालेलुया। touching you. यीशु आपको छूते हैं Because क्योंकि you are praising Him when you are weak. आप जब कमजोर हैं, आप उसकी स्तुति कर रहे हैं। Your weakness will turn to your strength. आपकी कमजोरी आपकी ताकत में बदल जाएगी। Yes, your weakness will turn to your strength. आपकी कमजोरी आपकी ताकत में Lord, I परिवर्तित। pray in the name of प्रभु मैं यीशु Jesus. के नाम में दुआ करता हूँ। Let the mountain be पहाड़ plain. पहाड़
हट जाए। I command in the name of Jesus. मैं यीशु के नाम में The हुक्म देता हूँ, authority that you have given to us. जो अधिकार तूने हमें दिया, I command the mountain in the name of Jesus of difficulty to be plain now. मैं उस कठिनाइयों के पहाड़ को यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ, चली जाए। And you will rejoice morely in और Jesus' आप name. प्रभु में और अधिक आनंदित You will होंगे, experience the unlimited grace that Jesus will give you. और प्रभु के उस असीमित अनुग्रह को जो प्रभु आपको देगा, आप उसको देखेंगे। Hallelujah, Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, धन्यवाद Father. धन्यवाद प्रभु। Lord, you have changed the situations. प्रभु आपने परिस्थिति को बदल दिया। Lord, you are a miracle worker. आप अद्भुत काम करने वाले Lord, हैं। you have kept the promise. खुदावंद आपने अपनी वाचा को पूरा किया। We thank you for, हम Lord, धन्यवाद करते for all the things you have done today. हैं हर एक अच्छी चीजों के लिए जो आपने किया आज। Let the fire of Holy Spirit be ignited in us. पवित्र आत्मा की आग हमारे भीतर जलती रहे, Let it be ignited, पूरी तरह से जलती रहे, and so that we can share the light of Holy Spirit with others. ताकि हम पवित्र आत्मा के माध्यम से तेरी उस उजाले को दूसरों के And साथ boldly we can testify that Jesus is a living God we serve. और हम हियाव से इस बात की गवाही दे सके, यीशु जिंदा खुदा है। Thank you, Lord, for listening to our prayers. प्रभु धन्यवाद देते हैं हमारी दुआ को सुनने के लिए। Lord, heal the sick people right now. प्रभु बीमारों को इसी वक्त चंगा कर दे। The people who are watching us online, heal them, Lord. जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, यीशु के नाम से चंगा कर दे प्रभु। There is a mighty presence in your name. तेरे नाम में सामर्थ्य उपस्थिति है There is power in you, Jesus. प्रभु यीशु, आप में सामर्थ्य है। Thank you for ministering to us, Jesus. प्रभु हमारी सेवा के लिए धन्यवाद देते हैं, Thank you for everything. हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। In the mighty name of Jesus we pray. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन आमीन Hallelujah. हालेलुया। Clap and say thanks to Jesus. ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। Jesus has changed your heart. प्रभु ने आपके दिल को बदल दिया है, Jesus has changed your situations. प्रभु ने परिस्थितियों को बदल दिया है। From now onwards you have a divine purpose in your life. आज के बाद आपके जीवन में स्वर्गीय उद्देश्य होगा। Don't forget, भूले नहीं, whatever you are doing, जो भी आप कर रहे हैं, are you honoring God? क्या आप परमेश्वर का सम्मान कर रहे हैं? Always remember this हमेशा इसको याद रखें and do your work. और अपने काम को करें। If you honor God, अगर आप परमेश्वर का मान करेंगे, God will lift you as such a place where all the people will start honoring you. तो परमेश्वर आपको ऐसे स्थान पर उठा करके खड़ा करेगा जहां आपको देखकर सब लोग प्रभु का मान करेंगे। Not only on the world you will have the reward, केवल इस संसार में आपको इनाम नहीं मिलेगा, but on the heaven also you will be rewarded. लेकिन आसमान में भी आपको उसका इनाम मिलेगा। Hallelujah. हालेलुया। Stay blessed in Christ. आशीषित रहे प्रभु में।